Hello, my rising stars. This is Shikha Arora, and today we are going to start with Class 7 Science, Chapter number 12, Reproduction in Plants. So, children, let's get started. Name the different parts of the plant. तो यहाँ पे आपको एक प्लांट दिया है और आपको उसके पार्ट्स को लेबल आउट करना है. जैसे कि ये पार्ट है आपका स्टेम, ये है आपकी रूट, दिस इज योर लीफ, flower and a bud. In class 6, we have learned about different parts of flowering plant. Most plants have roots, stems and leaves. These are called the vegetative parts of the plant. तो ये वाले parts को जो roots होती है, stems होती हैं, leaves होती हैं, इनको हम vegetative parts of the plant कहते हैं. The flower perform the function of reproduction in plants. तो जो flowering plants होते हैं उसके अंदर जो flower होता है that is the main reproductive organ of the plant. फ्लावर ही वो पार्ट है जिसमें मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं या फीमेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं या दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिप्रोडक्शन. The male part produces male gamete, whereas the female part of the flower produce female gamete. Reproduction in plants can take place through its vegetative part or through reproductive part. तो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स दो टाइप का होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के अंदर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल चाहिए होता है. यहाँ मेल फीमेल नहीं चाहिए होते. कोई भी बॉडी पार्ट से डेवलपमेंट हो जाता है एंड इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एन न्यू ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब उनकी प्रोजेनी, आगे उनके जो बेबीज हैं. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट दोनों की ही जरूरत पड़ती है. There are two main types of reproduction in plants, asexual and sexual reproduction. The process of reproduction involves participation of either one individual or two individuals. Hence, based on the number of individuals involved, reproduction is classified as asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction involves participation of only one individual. सिर्फ एक ही individual की जरूरत होती है, such that the offsprings have only one parent. Children, have a look on asexual reproduction. The production of new plant from a single parent without involvement of gamete is called asexual reproduction. तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है, दोनों पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है. Asexual reproduction in plants takes place by the following methods. सबसे पहला मेथड होता है budding, second is fragmentation, third is spore formation and then is vegetative propagation. तो जैसे budding है, budding as the name indicate, एक छोटा सा bud appear करता है parent body पे, जो कि धीरे धीरे by the means of cell division grow करता है. और जब वो काफी ग्रो कर जाता है तो ये बड डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट और एज अ इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल वो बिहेव करना शुरू कर देती है. इन बडिंग द ऑफस्प्रिंग अराइजेज एज एन आउटग्रोथ कॉल्ड बड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. द बड आफ्टर बीइंग डेवलप्ड डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ. इन यूनिसेलुलर फंगाई yeast, a bud starts as a small outgrowth. एक छोटी सी आउटग्रोथ बनना शुरू होती है और ये बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन बड़ी होती जाती है. इसके अंदर टेंटिकल्स आ जाते हैं, इसके अंदर वैक्यूल आ जाते हैं और जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है ये बड डिटैच हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट बॉडी और इट बिहेव्स एज अ न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. Soon the nuclei of the adult cell divide and daughter nucleus migrates into the newly formed bud. Soon after the migration, the bud is pinched off. It remains in contact with the parental cell for some time before detaching itself completely to live an independent life. ऐसे ही बड की फॉर्मेशन होती है हाइड्रा में भी. तो हाइड्रा में क्या हो रहा है, बड बनी, बड ने अपने आप को ग्रो किया, उसके बाद बड डिटैच हुई और एक सेपरेट इंडिविजुअल की तरह रहने लगी. इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल बड डेवलप्स ऑन द बॉडी सरफेस that continues to grow. The dividing cell inside the bud soon differentiate themselves to form body cavity and tentacles. फिर आता है fragmentation. Fragmentation is basically seen in case of Spirogyra. तो Spirogyra कैसा होता है, एक रिबन शेप्ड होता है. उसके बाद क्या होता है, ये
आफ्टर सम टाइम, जब इसका फेवरेबल टाइम है, रिप्रोडक्शन का टाइम है, तो ये बीच में से ब्रेक कर जाता है और दोनों ही पार्ट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो दोनों ही पार्ट्स जो है एज अ न्यू इंडिविजुअल बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 or more fragments after gaining maturity. Each of these fragments soon develops into an offspring. Example, Spirogyra, flatworms such as Taenia solium. Third method is spore formation. Children, this is very common method. आपने अपने घर में देखा होगा, ब्रेड के ऊपर ब्रेड मोल्ड आ जाता है। अगर वो हल्की सी मॉइस्ट है और आपने उसको वार्म एयर में रखा है तो ब्रेड क्या डेवलप कर जाती है, कुछ ग्रीन कलर का फंगस लग जाता है ब्रेड पे, दैट इज द ब्रेड मोल्ड। तो ब्रेड मोल्ड कैसे रिप्रोड्यूस करता है? इट रिप्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। बहुत सारे अमाउंट में स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स जो होते हैं ये फॉर्म हो जाते हैं एक सर्कल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जैसे एक मटर बर्स्ट हो सकता है ना और उसके दाने बिखर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही स्पोरेंजियम बर्स्ट होता है और उसमें से स्पोर्स जो है वो डिफरेंट जगह पे फैल जाते हैं। जहां जहां पे स्पोर्स गिरेंगे वहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। इट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फर्न्स। अ स्पोर इज अ टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर with a thick wall developed in sporangium. In fungus such as bread mold, sporangium develop on the slender and erect surface called hyphae. इनके ऊपर एक डेवलप करता है सर्कल टाइप स्ट्रक्चर। Sometimes when the conditions are unfavorable, ये तब तक बर्स्ट नहीं करता जब तक कि इसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती, और जब तक इसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं ये अपने ऊपर एक कोटिंग बना लेता है, हार्ड सी कोटिंग बना लेता है जिसको बोलते हैं सिस्ट। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस रीच करती हैं ये सिस्ट ब्रेक कर जाती है और स्पोरेंजियम जो है वो बर्स्ट करके स्पोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्लांट parents by the fusion of their gamete is called sexual reproduction. तो यहाँ तक हमने देखा कि अभी तक तो कोई भी सिंगल पेरेंट वाज इन्वॉल्व, लेकिन जब दोनों ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मींस मेल गेमीट देता है फ्रॉम मेल एंड फीमेल गेमीट कम फ्रॉम फीमेल, और दोनों का जब फ्यूजन होता है इट रिजल्ट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. During sexual reproduction in plants, fusion of male gamete with female gamete leads to formation of seed. तो इन दोनों के फ्यूजन से बनता है zygote which further develops into seed. These seeds can then germinate to form plant. So in sexual reproduction, new plant are obtained from the existing plants through seeds. Most of the flowering plants reproduce by the method of sexual reproduction. Some of the plants which are produced by sexual reproduction method are wheat, pea, rice, sunflower, cotton, mustard, rose, etc. Then vegetative propagation. बच्चों वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर से रिप्रोडक्शन हो जाता है थ्रू रूट, स्टेम और लीफ ऑफ अ प्लांट. सिंस प्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट, इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं. जैसे बाय रूट्स, तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होती हैं उनमें बड्स प्रेजेंट होती हैं, सच एज स्वीट पोटैटो एंड डेलिया. ये रूट्स व्हेन प्लांटेड ग्रो टू डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. ऐसे ही स्टेम्स, जैसे कि आपने आलू खाया होगा, आपने अनियन खाया होगा, तो दीज कैन बी प्रोड्यूस्ड विदाउट देयर सीड्स. हम प्लांट से भी इनको उगा सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा आलू होता है, आलू के पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, छोटे छोटे से स्कार्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक यू हैव दिस पोटैटो एंड यू हैव दीज स्कार्स हियर, ऐसे करके बने होते हैं ना. इनको हम बोलते हैं आईज ऑफ पोटैटो. क्या बोलते हैं इनको हम? आईज. और अगर आप इसको थोड़े टाइम जमीन पे छोड़ दो तो आप यहाँ पे क्या देखते हो कि यहाँ पे छोटी छोटी सी बर्ड्स उगाती हैं. और इसी पोर्शन को अगर मैं कट कर लूँ एंड इसको मैं सॉइल में रख दूं और अच्छे से इसको वाटर करूं, तो थोड़े टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा पोटैटो का प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है. मेनी प्लांट्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स थ्रू देयर स्टेम्स. अ फ्यू एग्जांपल्स आर पोटैटो ट्यूबर्स. अ पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम. तो ये एक मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जिसके अंदर स्टेम से ही बड्स निकलती हैं और उनसे आप न्यू इंडिविजुअल बना सकते हो. सिमिलरली बल्ब्स क्या होते हैं? अनियंस, ट्यूलिप एंड लिली. इनको भी आप इनके
अनियन से ही आप अगर छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए तो आप क्या देखते हो, अनियन में से भी लीव्स निकल आती हैं। उसे अगर आप सॉइल में बरी करोगे तो आपका न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो जाता है। These are underground modified stem with thick leaf such as onion, tulips and lily. When planted in a soil, they grow into a new plant. You must have observed in moist, warm conditions leaves arising from an onion. Rhizome. Rhizome के एग्जाम्पल होता है जिंजर और टर्मरिक। तो जिंजर और टर्मरिक भी अंडरग्राउंड स्टेम हैं जो ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल. When a small ginger is planted into the soil, after some days it starts producing leaves. Corm. A corm is a short but swollen stem with stored food such as in gladiolus. In its stem separates themselves naturally and produce new plant. तो ये भी एक मोड है vegetative propagation का. Then you have runner. These are the side shoots that grow over the soil with buds such as in strawberry. तो ये हमें स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलती हैं, बड्स ग्रो करती हैं और आप जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वाटर और टेम्परेचर की, वो एक नए इंडिविजुअल में, नए प्लांट में डेवलप हो जाती हैं. ऐसे ही बाय लीव्स, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स के थ्रू भी होता है और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम. इसमें क्या होता है कि लीफ में छोटे छोटे सी लीव्स अपने आप से डेवलप हो जाती हैं और उनके अंदर रूट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये रूट्स जैसे ही सॉइल को टच करेंगी वैसे ही वहां पे नए प्लांट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा. Bryophyllum is one of the example of plants that possess buds on their leaves. These buds produce new plants under favorable conditions after reaching maturity. आर्टिफिशियल मेथड. हम आर्टिफिशियल मेथड से भी बहुत सारे टाइप के इकोनॉमिकल और मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स को उगा सकते हैं. A number of ornamental plants and plants of economic and medicinal value are planted by the gardeners and horticulturists for large scale commercial purpose. They use different methods. अब वो कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं? पहला है कटिंग. इस कटिंग के मेथड में आप क्या करते हो, आप एक हेल्दी स्टेम को सिलेक्ट करते हो, उसकी लीव्स वगैरह को रिमूव कर देते हो, उसको कट करते हो और उसको सॉइल में प्लांट आउट कर देते हो. तो उसको जब हम अच्छे से वाटर देते हैं, उसको टेम्परेचर की सही अमाउंट मिलता है, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से भी लीव्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. तो कटिंग के थ्रू हम रोजेज उगा सकते हैं, हिबिस्कस कल्टीवेट कर सकते हैं. A cutting is a short piece of stem, root or leaf taken from a healthy plant, provided it has some buds. While when a cutting is placed in moist soil under favorable conditions, it develops roots and shoots to grow into new plant. You must have observed a gardener planting a rose. He selects a healthy cutting from rose plant and plants it in the soil. After a period of 7 to 10 days, the cutting starts bearing leaves. Sometimes the lower end of the cutting is dipped into the rooting hormone to promote growth of roots. It is mostly adopted to plant rose, sugarcane and even bougainvillea. Then is layering. Layering में हम क्या करते हैं? It involves burying a plant stem into moist soil. उसके अंदर हम एक प्लांट की स्टेम लेते हैं, उसको moist soil में bury कर देते हैं around a depth of 5 to 8 सेंटीमीटर. थोड़े दिन बाद क्या देखते हैं हम कि उसमें से रूट डेवलप कर जाती हैं और जब रूट उसमें से निकल आती है हम स्टेम को काटते हैं, को हम इंडिविजुअल प्लांट की तरह प्लांट आउट कर देते हैं. देन इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम एक इंसिजन बनाते हैं. इंसिजन भी कैसा? इट शुड बी बिल्कुल तिरछा. इस तरीके से हम इसके अंदर इंसिजन बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं. It involves joining of a plant part, particularly stem. हम एक healthy plant की stem लेते हैं और इसको कट करते हैं from, जिसको हम बोलते हैं scission, and is placed on the stump of another plant. इसे दूसरे plant के ऊपर रखते हैं और उसको हम बोलते हैं stalk, जिसके पास root system अच्छा सा developed हो. इसे इंक्लाइंड वे में काटते हैं. सीजन को इंक्लाइंड वे, सीजन और स्टॉक जो है दोनों के दोनों इंक्लाइंड वे में होने चाहिए ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा सरफेस मिल सके ऑफ अटैचमेंट. वंस प्लेस्ड ओवर ईच अदर, द टू आर टाइड जेंटली यूजिंग अ फाइन प्लास्टिक शीट टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जंक्शन. Stalk supplies nutrient required by the scission while the cambial activity of scission and stalk joins the two plant parts together.
तो इस तरीके से आप किस किस को कल्टीवेट कर सकते हो, आप मैंगो कल्टीवेट कर सकते हो, स्वीट ऑरेंज, लाइम, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स एंड रोजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? एक तो ये बहुत ही क्विक मेथड है जिससे हम बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। We have just learned that for producing potato plant using potato cutting is much faster than protection of potato plant from seed. इनको सीड से ग्रो करना उतना आसान नहीं होता जितना हम इसकी कटिंग के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हैं। दूसरा, जो प्लांट बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है ऑफ द पेरेंट प्लांट। Plant grows by this way requires less time to mature, bear fruits than those grown from the seed. New plant is the exact copy of the parent plant as they are produced from single parent. So all the good desired qualities of the parent plant can be replicated in the new plant. ऐसे ही अगर प्लांट पार्ट को कोई डिजीज है तो वो डिजीज भी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगी। अगर डिजायर्ड कैरेक्टर्स, डिजायर्ड क्वालिटीज ऑफ अ पेरेंट प्लांट आ रही हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो डिजीज भी, अगर पेरेंट प्लांट डिजीज्ड है तो ऑफस्प्रिंग्स में भी वो डिजीज देखने को मिलेगी। Even seedless plants like banana, sugarcane, pineapple, grapes can be easily grown by this method. Plants developed by vegetative propagation usually requires less attention than plant grown from seeds. Now children, we have to study about the sexual reproduction. For sexual reproduction, you have first see the parts of the plant. Flower. तो flower के पास होते हैं sepals और पेटल्स, ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होते हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन, जो कि अभी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर होते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमिन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। फिर होते हैं इसका फीमेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ovary. So let us discuss them in detail. The plant that has flowers are called flowering plant. Sexual reproduction is a characteristic of flowering plants. Flowers are reproductive part of the plant. The reproductive organs of flower are stamens and pistil. Let us discuss in detail. Let us see the position of stamen and pistil in a flower. अब सेपल्स और पेटल्स भी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये सिर्फ हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे करते हैं? सेपल्स जो हैं ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग बड स्टेज, ताकि इन्हें कोई एनिमल्स खा ना जाए। दूसरा, पेटल्स जो है, पेटल्स सुंदर होती हैं, ब्राइटली कलर्ड होती हैं, स्वीट फ्रेगमेंटेड होती हैं, सेंट होती है इनके अंदर, तो ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? इसीलिए ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों ही इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो मेन जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेमिन। स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, ये जो लंबी सी आपको डंडी दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो स्वॉलन पार्ट है इसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं विच आर द मेल गैमीट। अगर आपने फ्लावर, हिबिस्कस के फ्लावर को देखा होगा और यहाँ पे आप देखोगे येलो येलो कलर के इसके अंदर से पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको आप हाथ से टच करके देखो तो वो पाउडर फीलिंग देता है। सो वही इसके पोलन ग्रेन्स हैं। Stamen is the male reproductive organ of the plant. It has two parts, filament and anther. The stalk of stamen is called filament and the swollen top of the stamen is called anther. Anther contain pollen grains. Pollen grains contain male gamete. Pollen grains appear to be yellow powder to us. Then you have the female part. Female part को हम बोलते हैं pistil और carpel या फिर gynoecium. Pistil के तीन parts होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो स्टिग्मा जो होता है ये स्वॉलन होता है एंड इट फॉर्म्स द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द मेल गैमीट दैट इज पोलन ग्रेन्स। और वो कैसे आते हैं? वो आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो जो पोलन ग्रेन्स यहाँ आके गिरेंगे तो वो किस पे गिरते हैं? वो गिरते हैं स्टिग्मा में।
और स्टिग्मा से फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चलता है जिसको हम बोलते हैं स्टाइल। इसी के थ्रू पोलन ग्रेन्स जो हैं वो पहुंचते हैं ओवरी तक और ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स जिनके साथ वो फ्यूज करके बनाते हैं जाइगोट। Pistil is the female reproductive organ of the plant. It is made up of 3 parts: stigma, style and ovary. The top sticky part of pistil is called stigma. Middle part is called style. It is a tube which connects stigma to the ovary. The swollen part at the base of the pistil is called ovary. Ovary contains ovule which produces the female gamete. Each ovule contains only one female gamete called egg. Bisexual and unisexual flowers. Flowers of pea, rose, china and petunia जिनके अंदर दोनों ही मेल और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो सिर्फ मेल गैमीट प्रेजेंट होता है या सिर्फ फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है, ऐसों को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर फ्लावर्स। The male and female parts present in different flowers. Now pollination. अब रिप्रोडक्शन होने के लिए फीमेल पार्ट तक मेल पार्ट को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और ये होता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ईदर ऑफ द सेम टाइम और ऑफ द अदर प्लांट बट ऑफ सेम स्पीशी इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अब दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो वो उसी फ्लावर के ऊपर गिर जाए या फिर दूसरे फ्लावर के ऊपर लेकिन सेम प्लांट के, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। जैसे कि आपने गमले में इधर भी एक रोज लगाया है और इधर भी, तो यहाँ से कोई इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स कैरी करके दूसरे प्लांट के रोज के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर अगर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो इसे हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। द क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स एजेंट टू कैरी पोलन ग्रेन्स। These agents mostly include are insects or wind. Wind pollinated flowers are well adapted to assist in the process of pollination as they have dull and small petals but hanging anthers outside the periphery of petals to allow the pollen grains to blow with the wind when the anthers burst. तो इनमें क्या होता है, इनमें जो एंथर्स होते हैं ये बाहर की साइड में होते हैं, हैंग हो रखे होते हैं, तो विंड के साथ ये इजीली ब्लो ऑफ हो जाते हैं एंड दे गेट पॉलिनेटेड। ये आराम से किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर जाके गिर जाते हैं और वहां पे फिर क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दे ऑल्सो हैव फेदरी स्टिग्मा टू फिल्टर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एयर. All cereal crops such as wheat, maize, corn as well as grasses have wind pollinated flowers. Now fertilization. अब क्या है कि जो पोलन ग्रेन है वो रीच कर जाता है स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा जो है वो स्टिकी है और स्टाइल्स में एक नई ट्यूब बननी शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, और इस पोलन ट्यूब के अंदर होता है एक शुगरी सब्सटेंस। यही वो शुगरी सब्सटेंस है जो पोलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन जो है वो नीचे की तरफ को मूव करता है एंड इट रीचेस द ओवरी। उसके बाद ये ओवरी को पियर्स करके अंदर इसके अंदर मेल गैमीट को रिलीज करता है जो कि फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज आउट करके जाइगोट बनाता है। When the pollen grain from the flower land on the stigma of the flower belonging to the same species, बच्चों फर्टिलाइजेशन तभी होगी जब स्पीशीज सेम होगी। A sugar containing fluid is secreted. Pollen grain responds after absorbing this fluid by germinating to give rise to pollen tube. तो एक पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। The pollen tube carrying two male gamete nuclei grow downward in the pistil to reach the ovule. It pierces through the ovule to release male gamete. फिर क्या होता है, मेल गैमीट जो है एग सेल के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बना लेता है एंड द अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विद अदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द ओव्यूल। और दूसरा क्या होता है, जो दूसरा मेल गैमीट था वो न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द ओव्यूल से फ्यूज आउट करके एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बना लेता है। Thus the fusion of male and female gamete with is called as fertilization. और जब फर्टिलाइजेशन, जब दूसरा भी मेल गैमीट फ्यूज करता है न्यूक्लियाई के साथ
टू फॉर्म एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, उसको हम बोलते हैं, ऐसी फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जितने भी सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं ये ड्राई होके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। द जाइगोट जो है अब ये डेवलप करता है एम्ब्रियो में। एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई डेवलप इनटू फूड stored in the form of endosperm within the ovule to provide nourishment to the growing embryo। तो अब इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा? वो मिलता है, ये जो एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना था, इसने जो एंडोस्पर्म बनाया है, यही वो है जो उसको फूड और नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा फॉर इट्स डेवलपमेंट। बोथ द एंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड कवरिंग कॉल्ड एज टेस्टा। तो इनके बाहर एक कवरिंग बन जाती है जिसको बोला जाता है टेस्टा। एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म एनक्लोज्ड बाय टेस्टा मेक्स द सीड। Along with the formation of seed from the ovule inside the ovary also undergoes changes to form fruit। तो अब क्या होता है, जो ओवरी होती है, जितने भी ओव्यूल्स होते हैं, बचे ओव्यूल्स जो है वो तो बना लेंगे सीड, और ओवरी जो है वो डेवलप कर जाती है फ्रूट में। Hence, all fruits contain seeds except in few cases where the fruit does not possess seeds such as banana and few variety of grapes। Now children, dispersal of seed। अब seed भी बन गई, लेकिन क्या है कि अगर सारी की सारी seeds एक ही जगह डेवलप हो जाएंगी तो वहाँ पे तो कंपटीशन हो जाएगा, खाने का कंपटीशन, एयर के लिए कंपटीशन, और जो फिट होगी वही सर्वाइव करेगी, बाकी सारी तो सीड्स जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगी। इसीलिए सीड्स का डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी है। In nature, the same kind of plants grow at different places because their seeds are dispersed to different places by various natural agents such as wind, water, insects, human beings also. The scattering of seed over a large area away from the mother plant by the agent of dispersal is called dispersal of seeds. If all the seeds produced by a plant fall directly underneath the plant, germinate and grow, then there will be large number of new plants would grow up close together in a small area of soil. They will compete with one another for water and mineral and sunlight. Due to insufficient availability of water, mineral, sunlight, the new growing plant will not grow into healthy plant and some plant may also die. In order to prevent overcrowding at the same place, seeds and fruits need to be dispersed। तो dispersal किस किस चीज में हेल्प करती है? एक तो वो overcrowding नहीं होने देती, दूसरी कि यहाँ पे इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग अ कंपटीशन नहीं होगा फिर वाटर के लिए, मिनरल के लिए, सनलाइट के लिए, और इसकी वजह से ज़्यादा जो है सीड जो है वो डेवलप हो पाएंगी। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड फ्रूट बाय विंड। तो जो सीड्स विंड के थ्रू डिस्पर्स होनी है या जो फ्रूट्स होने हैं, दे शुड बी लाइट इन वेट, वो फेदरी होने चाहिए ताकि इजिली कैन बी कैरिड अवे बाय द विंड। Certain seeds have developed special adaptive features which help them to be dispersed by wind. For example, seed of drumstick plant and maple plant have wings attached to them। तो कुछ seeds ऐसी होती हैं जिनके अंदर wings हो जाते हैं, तो ये wings उनको help करते हैं movement by the wind। Seeds of cotton, caterpillar, dandelion, madar and fruits of sunflower have hairs around them। और कुछ सीड्स के आसपास ये हेयर्स हो जाते हैं जो कि लाइट इन वेट होते हैं एंड कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड। सीड्स ऑफ ग्रासेस, ऑर्किड्स एंड बिगोनिया हैव स्मॉल एंड लाइट वेटेड सीड्स। या तो इनकी सीड्स बहुत ही लाइट वेटेड होती हैं जो कि इजीली विंड के थ्रू कैरी ऑफ की जा सकती हैं। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। तो जो वाटर में होती हैं, जैसे कि आपका कोकोनट प्लांट, तो ऐसी सीड्स जो हैं दे शुड बी एबल टू फ्लोट ऑन वाटर, can be easily carried by water. Certain seeds have developed adaptive features which helps them disperse by water। तो इनके अंदर या तो फ्लोटिंग एबिलिटी होनी चाहिए या ये स्पॉन्ज की तरह होनी चाहिए, स्पॉन्जी होनी चाहिए, फाइब्रस आउटर कोट होना चाहिए। जैसे कि कोकोनट के अंदर आप देखते हो, कोकोनट का कैसा होता है, फाइब्रस थिक कोट होता है इसका, जो कि इसको हेल्प करता है वाटर में फ्लोट करने में और दूर दूर तक लेकर जाने में। Seeds of water lily plant and lotus plant have spongy outer coat। ये स्पॉन्जी होती हैं जिनको हेल्प करती है फ्लोटेशन इन वाटर में और दूर तक लेकर जाने में हेल्प करती है।
Dispersal of seeds and fruits by animals. Certain seeds are dispersed to far off places by certain animals. They can be carried by various means. अब कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हुक्स प्रेजेंट होते हैं और कोई ह्यूमन उनके पास से चल रहा तो उनके कपड़ों में वो हुक अटक गए, या एनिमल हेयर्स के साथ कुछ स्टिकी हैं, हाउस फ्लाई आके बैठी तो वो उसके ऊपर चिपक गए. सो इस तरीके से ये डिस्पर्स आउट होते हैं. Some fruits develop hook on their surface by which they get attached to the fur of animals, carried away to different places before they get rubbed off from their body and fall to the ground. The fruits of Gokru, Xanthium, Urena are dispersed by animals due to their hooked surface. Sometimes animals eat seeds along with their fruits. These seeds remain undigested and pass as species at some other distant places. तो कुछ एनिमल्स फ्रूट्स जब खाते हैं तो उनकी सीड्स को भी खा जाते हैं, तो ये सीड्स उनकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड पड़ी रहती हैं और जब वो अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट करते हैं उसके साथ ये सीड्स जो हैं वो वापस से बाहर आ जाती हैं और अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं देन दे ग्रो आउट. डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एक्सप्लोसिव मेथड. कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल एक जर्क लगता है तो वो बर्स्ट करते हैं, जैसे कि मटर के दाने बर्स्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे ही जर्क लगने पे या ड्राई होने पे ये बर्स्ट करते हैं और जहाँ जहाँ इनकी सीड्स गिरती हैं वहाँ पे अगर फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट हैं तो जर्मिनेशन हो जाएगी. Dispersal of seeds in plants like balsam, castor, pea and geranium takes place by explosion of their fruit. Agents of pollination. अब कौन कौन है ऐसे एजेंट्स जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में? सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमारे इंसेक्ट्स हैं जो नेक्टर सक करने जब बैठते हैं फ्लावर पे तो वो उनके एंथर्स जो है वो पैर में चिपक जाते हैं और फिर वो जाके बैठते हैं दूसरे फ्लावर पे, वहां जाके वो अपने फीट्स को रब कर देते हैं तो जो एंथर्स है पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं और फिर पॉलिनेशन हो जाता है. Many insects such as bee, butterfly and moth feed on the nectar of the flower. A few insects are attracted by the color and odor of the flower. When these insects visit the flowers, the pollen grains from anthers stick to their body, and when these insects sit on another flower, these pollen grains get rubbed off, causing pollination. Pollination by wind. तो जब पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाते हैं, एंथर्स ब्रेक करते हैं, तो ये पोलन ग्रेन्स बीइंग लाइट इन वेट कैन बी इजीली कैरिड अवे बाय द विंड. तो ये इसको कैरी करता है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे और उसका हेल्प करता है पॉलिनेशन में. तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? ग्रास में, वीट, कॉर्न, शुगर केन, मेज, ऐसे वाले प्लांट्स में पॉलिनेशन बाय विंड हो जाती है. एंड देन पॉलिनेशन बाय वाटर, ये तो आपको पता है कोकोनट प्लांट के अंदर, हाइड्रिला, वेलिसिनेरिया, ऐसे प्लांट्स के अंदर होती है पॉलिनेशन बाय विंड्स जहां वाटर फॉर्म्स अ एजेंट फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन. द पॉलिनेशन इन aquatic plants is generally done by water. Water currents carry mature pollen grains from one flower to another flower and helps in pollination. Pollination in aquatic plants such as Vallisneria and Hydrilla is carried out by water. Now seed germination. अगर एक सीड को राइट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मिले, वाटर मिले, सॉइल मिले तो वो क्या करती है? सनलाइट मिले तो वो ग्रो कर जाती है, वो डेवलप करती है इनटू अ न्यू प्लांट. So this process of developing a seed into a new plant under favorable conditions of water, temperature and sunlight is called as germination. A seed is a miniature plant carrying the embryo in dormant state whilst with stored food. The dormant embryo requires certain conditions to grow that include the availability of oxygen-rich air, moisture along with appropriate temperature. तो अगर ये सारी ही कंडीशन सीड्स को मिल जाती हैं तो वो जर्मिनेट करती हैं. द फर्स्ट स्टेप ऑफ जर्मिनेशन इज सबसे पहले सीड क्या करती है? ये वाटर को अब्जॉर्ब करती है ताकि इसकी जो हार्ड कवरिंग है वो ब्रेक की जा सके, ताकि इसका जो टेस्टा है वो ब्रेक हो जाए. एंड एक्टिवेट द एंजाइम प्रेजेंट इन सीड टू डाइजेस्ट द फूड. अब इस सीड के पास कॉटलिडन प्रेजेंट है. कॉटलिडन क्या होता है? इट इज लेडन विद फूड.
तो अब ऐसे एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं जिससे ये सीड क्या करती है, अपना खाना कंज्यूम करना शुरू करती है, डेवलपमेंट शुरू करती है, और ये डेवलप करती है एक रेडिकल निकलता है नीचे की तरफ जो कि हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ रूट में। रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट और ऊपर की तरफ को ग्रो करता है प्लूम्यूल डेवलप्स इनटू द शूट सिस्टम। The embryo consists of radicle and plumule. The radicle develops into root and the first to come out to absorb water, followed by plumule that develops into the shoot. As you can see in this diagram, सबसे पहले सीड क्या करेगी, वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, ये अपनी सीड कोड को रिमूव करने, जो कि इसके सीड कोड को रिमूव करने में हेल्प करेगा। उसके बाद इसके पास कॉटलिडन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सीड का खाना है, उसे कंज्यूम करके सबसे पहले रेडिकल बाहर निकलता है और रेडिकल फिर नीचे की तरफ को ग्रो करता है एंड बनाता है रूट सिस्टम, और उसके बाद प्लूम्यूल बाहर आता है जो कि बनाता है शूट सिस्टम, और उसके बाद हमारा प्लांट जो है वो बाहर हमें दिखने लगता है। Children, have a look on the new words. Reproduction, the production of its own kind by an organism to maintain its species. Asexual reproduction, production of new individual by a single parent. Sexual reproduction, production of new individuals by the fusion of two types of sex cells. Fragmentation, breaking up of body of a plant into two or more parts of fragments with each part growing into a new plant. Vegetative propagation, the growing of a new plant using vegetative parts such as stem, roots or leaves. Flower, it is the reproductive organ of the plant. Fertilization, fusion of male and female gamete resulting in the formation of embryo. Now summary of this chapter, children. Reproduction is the production of its own kind by an organism to maintain its species. All organisms differ. Some reproduce asexually, whereas the others reproduce sexually. Asexual reproduction involves one parent, whereas the sexual reproduction involves both male and female partners. The sexual reproduction involves the formation of sex cells and their fertilization to form zygote that develops into an embryo. Have a look on the exercise, children. See the first question. Choose and take the correct option. Asexual reproduction takes place through budding in hydra. Anthers contain pollen grains. Vegetative propagation does not occur in seeds. Which of the following plants reproduce vegetative? तो बनाना भी करता है, grapes भी करते हैं, sugarcane भी करता है. So answer is all of these. The seeds develops from ovule. See the true and false, children. The zygote develops into an embryo. It is true. Production of new individual from the parent is called respiration. No, it is false. Pistil is the female reproductive part of the plant. It is true. Plants produce seed as a result of asexual reproduction. No, it is false. See the C part, children. Fill in the blanks. Male reproductive part of the plant is stamen. Plants produce seed as a result of sexual reproduction. Asexual reproduction in Spirogyra is fragmentation. Mustard and rose have bisexual flowers. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.